Hello everyone. So our topic for today's session is chapter number 4, Exogenetic Process Part 2. Okay. Now what do you mean by exogenous process, students? Let's see. We have learned in the previous lesson that the earth's surface wears away because of erosion. The eroded material gets carried away by agents. When the speed of the agents reduces, the materials get deposited. Now student, what is exogenetic? Okay, exogenetic matlab kya? It is a basic process that originates externally on the surface of the earth. कि जो चीज़ें surface of earth के ऊपर होती है on the earth surface, but बाहर से externally, that is called as exogenetic process. Now you have seen that because of earth surface, like the earth surface जो है, it gets wear away. Wear away because of erosion. Now what is erosion, students? What is erosion? What do you think? What does it means by erosion? जो एरोड होता है, जो कैरिड अवे हो जाता है, जो मटेरियल्स कैरिड अवे हो जाते हैं, इट कैन बी थ्रू एनी मीन्स. यहाँ पे लिखा है सी. व्हाट इज इट रिटर्न? द एरोड मटेरियल गेट्स कैरिड अवे बाय एजेंट्स. तो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अर्थ सरफेस के ऊपर जो सारे मटेरियल्स हैं उनको एरोड करती है. So when the speed of this agent reduces, the material gets deposited. Now let us see further. I'll explain you all. The agents like running water, glaciers, wind, sea waves and groundwater do the work of erosion. Basically, अभी समझो, let us take an example of sea. ओके, तो हमारे सरफेस पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देर आर, फॉर एग्जांपल टेक सैंड और रॉक्स. ओके, तो जब रिवर का फ्लो, जो सी का फ्लो जब जोर से आता है, तो दे टेक अवे रॉक्स एंड सॉल्ट विद इन देम सेल्फ, राइट. तो पानी के साथ वो भी बह जाता है, राइट. तो यही सारे एजेंट्स, जैसे अभी तो इसमें एजेंट का काम कौन करता है? वाटर. कि वाटर टेक्स अवे ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स, राइट. सो ऑल ऑफ दीज particles which helps in erosion are called agents. तो कौन कौन से agents होते हैं, students? There are glacier, wind, sea waves and groundwater. Okay, they does the work of erosion or deposition. Because of these agents, the earth's surface keeps on undergoing changes and new landforms are formed. कि because of these new landforms बनते, right. पहले एक surface है जहाँ पे बहुत सारे rocks है, okay, but एक flow आता है पानी का and वो अपने साथ उनको लेके जाता है. तो वहाँ के rocks अभी हट गए, तो वो landform वापस नया बन जाता है, राइट. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस एजेंट, लैंडफॉर्म्स कीप्स ऑन चेंजिंग. कि जो लैंड का फॉर्मेशन है वो हमेशा बदलता रहता है. वी विल स्टडी सम ऑफ दिस लैंडफॉर्म्स इन दिस लेसन. ओके, geographical explanation. Running water flows naturally in the direction according to the gravity along the slope and makes its own way. This is called a flow of water. बराबर ना. what is a river, student? Basically क्या? flow of water है, बराबर. that running water, जो running flowing water है, वो अपनी speed से आता है and वो flow होता रहता है. when many such flows of water come together, a river is formed. कि वैसे ही जो छोटे छोटे flow of water है, when they come together, and this together, the flow of water which is together in a large number is called as river. The slope of the land, the type of the rock, the volume of the water flowing in the river and the length of flow, volume of sediments in the river are the factors on which erosional, transportation and depositional work of river depends. ओके स्टूडेंट्स, मतलब देखो सिंपल है. एक्सोजेनेटिक प्रोसेस हम लोग ने देखा, जो एक्सटर्नली सरफेस पे होता है, जो अर्थ के सरफेस पे एक्सटर्नली होता है चेंजेस, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनेटिक. अभी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस 3 टाइप का होता है. सी यहाँ पे लिखा है द एरोशनल, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. ओके, कि ये 3 टाइप में एक्सोजेनेटिक प्रोसेस टेक्स प्लेस.
ओके, नाउ हम आज एक्सोजेनेटिक प्रोसेस किन किन चीज़ों का देखेंगे. तो जो हमने स्टार्टिंग में देखा, दैट हु वर्क्स एज एजेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव्स एंड ग्राउंड वाटर. ठीक है, तो हम इनका देखेंगे. क्या देखेंगे? एरोशनल प्रोजेक्ट, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के वो कैसे होता है. ओके, सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट एरोशनल वर्क. अभी हम रिवर्स का ले रहे. ठीक है, तो फर्स्ट एजेंट हम लोग ने क्या देखा? सी, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन पे देखो. द एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर. ओके, आई विल शो यू अ फ्लो चार्ट सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू. तो हम रिवर का एरोशनल वर्क, ट्रांसपोर्टेशनल वर्क एंड डिपोजिशनल वर्क देखेंगे. फिर सेकेंड एजेंट क्या है? ग्लेशियर्स. तो हम वापस उसका इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल वर्क देखेंगे. तो दैट इज़ हाउ द फ्लो ऑफ चैप्टर गोes. So let us see the erosional work of rivers. Okay, that how rivers erosional का जो उसका प्रोसेस है, that takes place. The river originates in a much higher altitude from the sea level. Here the river flows at great speed and therefore the power to erode is great. बराबर ना, अगर माउंटेन्स से रिवर फ्लो हो रहा है तो द स्पीड इज़ वेरी हाई. यू हैव सीन लाइक जो वाटरफॉल्स होते हैं उनकी क्या स्पीड में वो पानी आता है. क्यों? बिकॉज वो हाइट पे है. तो हाइट से पानी आ रहा है तो वो ग्रेट स्पीड में रहता है. एंड देयरफॉर द पावर टू इरोड इज़ हाई. कि जो जो पार्टिकल्स, इरोड मतलब क्या? अपने साथ लेके जाना. जो जो पार्टिकल्स आते हैं, तो समझो रिवर फ्लो हो रहा है तो इतने ज़ोर से फ्लो हो रहा है तो उसके साथ जो रॉक, सैंड सब है वो आराम से लेके आएगी. तो इरोजन लेवल जो है, इरोड इज़ ग्रेट. पावर, स्पीड हाई है तो इरोड का प्रोसेस हाई है वैसा. The river bed and the fast flow of water, sand particles, pebbles, etc., and the various tributaries joining the main river. All this led to the formation of gorges, which is canyons, V-shaped valleys and waterfalls. तो बेसिकली क्या होता है? जो जो रॉक्स, पेबल्स, सॉल्ट वो अपने साथ लेके आता है ना रिवर व्हेन इट इज़ इन ग्रेट स्पीड, तो उसके वजह से देयर आर फॉर्मेशंस ऑफ लैंडस्लाइड्स. ओके, कि लैंड के फॉर्मेशंस होते हैं. तो रिवर के इरोजन से कौन कौन से लैंड के फॉर्मेशंस होते हैं स्टूडेंट्स? देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ gorges. Now what do you mean by gorges, student? Gorge is basically a narrow valley between hills and mountains. के जो hills और mountain के बीच में छोटी सी valley होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? canyons और gorges. Now what do you mean by V-shaped valley, student? V-shaped valley क्या होता है? Is basically the formation of land which is formed after the erosion of river. And इसको V shaped क्यों बोलते हैं? See, you can see in the picture on page number 31, because there are mountains everywhere and mountains are forming the shape of letter V, alphabet V, and छोटा सा river बीच में pass हो रहा है, and that is why it is called V shaped, and it further leads to waterfall. Okay, तो first agent हम लोग ने देखा रिवर. उसका ट्रांसपोर्टेशनल में हम लोग उसका इरोशनल में कौन कौन से लैंडस्लाइड्स फॉर्म होते हैं स्टूडेंट? जॉर्ज, वी शेप्ड वैली एंड वाटरफॉल. नाउ वी विल सी द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय रिवर्स. कि ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन के वजह से कौन कौन से लैंडस्लाइड्स रिवर के फॉर्म होते हैं. A river flows down the slope from a hilly region. We all know, right, कि हिल से वो रिवर नीचे फ्लो होती है. At the foothills, the change in the slope causes deposition of coarse sediments. As these are deposited in a triangular shape, they form an alluvial fan. Okay, कि जो सारी चीज़ें रिवर जब ऊपर से फ्लो करके आती है तो अपने साथ रॉक्स, पेबल्स वो सब लेके आती है. तो वो सब कहाँ पे डिपोजिट होता है स्टूडेंट? एट द बेस. बराबर ना, कि एक जहाँ पे ग्राउंड फॉर्म होता है, जहाँ पे वो नीचे आती है, वहाँ पे ये सारे सॉल्ट और रॉक्स आ जाते हैं, पेबल्स आ जाते हैं. तो व्हेन ऑल ऑफ दीज कम टुगेदर
When all of these come together, there is formation of sediments. There is formation of triangular shape, and वो triangular shape you can call it as alluvial fans. You can see it in the picture, student. देखो अगर आप pictures में देखते हो तो वो जो curved part है ना, that is because कि जो waterfall flow हुआ है तो वो अपने साथ जो सारे rocks, stones, pebbles लेके आई है ना, वो सब नीचे आ गए हैं, and that is called as alluvial fans. As the steepness of slope decreases and the transporting capacity of the river decreases, it starts flowing slowly. बरोबर ना, जितना स्पीड में आ रही है रिवर उतना वो नीचे सब लेके आते अपने साथ, रॉक्स, सॉल्ट एक्सेट्रा, पेबल्स. बट इफ़ द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीजेस, देन जो इरोजन फैक्टर है वो भी डिक्रीज़ होता है, फिर वो भी धीरे धीरे टेक्स प्लेस स्लोली. It bends, meanders often in its way with an effort to cross even small obstacle. By the time the river reaches the sea, its riverbed becomes very wide and its speed becomes very slow. The sediments of the river gets deposited in its bed on its banks. Okay, so meandering of a river में क्या होता है students कि see, ड्यूरिंग हम लोग वाटरफॉल देखते तो ऊपर से नीचे आता है तो इट इज़ ईजी, बट मिंडरिंग ऑफ रिवर यू कैन सी इट इन द पिक्चर, ऐसे कर्व्स फॉर्म होते हैं. सो द रिवर हैज़ टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज कर्व्स. नाउ व्हेन इट हैज़ टू पास ऑल ऑफ दीज कर्व्स, तो ये छोटे छोटे स्मॉल ऑब्स्टेकल्स बीच में आते हैं, बराबर. तो उनको रिवर को क्रॉस करना है, तो व्हाट हैपन्स कि वहाँ पे थोड़े थोड़े डिपोजिशन हो जाते हैं ऑफ सैंड्स, रॉक एक्सेट्रा. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, मेंडरिंग ऑफ रिवर. Okay, now coming to the second page, the factor that determine the deposition of sediments are the length of the river, the volume of water, the amount of sediments, and the slope of the river and earth surface. Thus, landforms like flood levels, flood plains and deltas are formed because of deposition of sediments. अब जब हम लोग ने देखा वो मिंडर होता है तो वो अपने साथ क्या करता है, छोटे छोटे डिपोजिशंस छोड़ जाता है. एंड व्हेन दे लिव सच स्मॉल डिपोजिशंस विद देमसेल्फ, देन क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, देयर आर फॉर्मेशंस. किसका किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, फ्लड लेवल्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, all of these are being formed, flood leaves are being formed. You can see it on the picture shown. देखो यहाँ पे क्या है, रिवर फ्लो हो रहा है कि उसके बाजू में फ्लड लीव्स फॉर्म होते हैं ना. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लड लीव्स स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लड लीव्स? अगर आप पिक्चर में देख रहे हो तो जो डिपोजिशन है, सी रिवर है, उसके बाजू में जो डिपोजिशन हो गया है, रॉक्स का हो गया, सैंड का हो गया, उसको बोलते हैं फ्लड लीव्स. एंड उसके आजू बाजू के प्लेन्स को, जो फ्लैट एरिया है, उसको बोलते हैं फ्लड plains. Okay, and deltas are being formed. See students, you can see it in the picture. Okay, so because of transportational and deposition कौन से landslides form होते हैं, alluvial fans, flood leaves, flood plains and deltas. So this is how we complete रिवर. ओके, रिवर का हम लोग ने क्या देखा, एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. एरोजन में कौन कौन से लैंडस्लाइड्स फॉर्म हो रहे थे, जॉर्ज, वी शेप्ड एंड वाटरफॉल. एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन में कौन कौन से लैंडस्लाइड्स फॉर्म होते हैं, एलुवियल प्लेन, फ्लड लीव्स, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा. नाउ वी विल कम टू द सेकेंड एजेंट. इफ यू सी ऑन पेज नंबर 30, okay, the first agent was running water. Now coming to the second agent, the second agent is glaciers. Okay, the work of glaciers and landforms. In region where the temperature are generally below freezing point, precipitation is in the form of snowfall. हम लोग ने लास्ट चैप्टर में ही देखा, राइट, ये precipitation water vapor form कब होता है, when the temperature is low. अभी in the places when it is
लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री से कम होगा तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में क्या फॉर्म होगा, स्नोफॉल, राइट. Layers of snow accumulates on the earth's surface because of snowfall. Okay, that snowfall continues होता रहता है, तो there are layers of snowfall which is being created. The heavy weight of this overlying layers make the snow move along the slope. Okay, तो अभी उनका वजन बढ़ता जाता है ना, layers form हो रहे हैं, तो because of the heavy weight the snow move along the slope, के वो आगे पीछे होते हैं slope पे. At the base of the layer the snow starts melting because of the friction and the pressure from above. अभी friction क्या होता है, the force which takes place between टू ऑब्जेक्ट्स. जब टू ऑब्जेक्ट्स मूव होते तो जो फोर्स, जो प्रोडक्ट टेक्स प्लेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन. तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और ऊपर की स्नो का प्रेशर के वजह से क्या होता है, द बेस लेयर, जो नीचे का लेयर होता है वो मेल्ट होता है. एंड ऐसे ही करके थोड़े टाइम के बाद पूरा स्नोफॉल मेल्ट हो जाता है ना. स्टूडेंट्स, आप लोग ने देखा रहेगा, अगर स्नोफॉल का एक छोटा सा, सपोज आपने छोटा सा माउंटेन बनाया स्नोफॉल का, तो वो एट लास्ट कभी ना कभी क्या होता है, पिघल जाता है. तो कैसे पिघलता है, जो नीचे का लेयर होता है ना, द लेयर विच इज़ वेरी बिलो द लेयर्स ऑफ स्नो, जो एकदम लेयर्स ऑफ स्नो है उसमें से जो एकदम नीचे का है ना वो मेल्ट होता है. वैसे करके पूरा माउंटेन मेल्ट हो जाता है. Glacier starts moving slowly along the slope. Like the river, a glacier too carries out the work of erosion, transportation and deposition. तो अभी हम glaciers का 3 फैक्टर देखेंगे, erosion, transportation and deposition. तो erosion पहले देखेंगे, फिर transportation and deposition. Though its velocity is less, the mass of the ice is more, and hence the glacier erodes its own bank and its bed on a large scale. The erosional work of glacier produces landforms like cirques, errets, horns, U-shaped valley, hanging valleys, and roach mountains or shipwreck. Now if you see the pictures of cirques and horns, okay, now what do you mean by cirques, students? Cirques क्या होता है, you can see it in the picture given on the right hand side. What do you understand from the picture? What is mean by cirque? It is basically जो half open steep है ना, steep slided hollow at the head of the valley. Okay, जो वैली का हेड है उसके ऊपर जो स्टीप साइडेड खाली पार्ट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सर्क्यू. यू कैन सी इट इन द पिक्चर. ओके, देखो नीचे जो खाली पार्ट है ग्लेशियर्स के वजह से जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्क्यूज. एरिड्स, व्हाट डू यू मीन बाय एरिड्स, स्टूडेंट्स? पिक्चर में दिया गया है एरिड्स, नीचे कोई साइड पे you can see arids. What do you understand by arids? Any idea? Basically a piece of high land along the top of the mountains. के जो top of mountains है उसके ऊपर जो land का piece होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं arids. Okay, U-shaped valleys. You can see the picture of U-shaped valleys. Okay, पहले V-shaped था कि जो mountain के वजह से V form होता था. वो V वाला कैसा था, उसके mountains का स्लीप, अरे जो उसके mountains का steepness था वो एकदम straight था. पर यहाँ पे क्या होता है, यू शेप में जो माउंटेन्स का जो नीचे का पार्ट होता है ना वो थोड़ा कर्व्ड में रहता है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज यू शेप. ओके, व्हाट एल्स इज फॉर्म्ड, हैंगिंग वैली एंड रोच माउंटेन्स. नाउ व्हाट इज़ हैंगिंग वैली? सी, यू कैन सी इट इन द पिक्चर, स्टूडेंट्स. हैंगिंग वैली मतलब क्या, जो नीचे से माउंटेन के एक पार्ट से जो वाटरफॉल या रिवर फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग body. Okay, hanging valley and roach mountains. Now what do you mean by roach mountains, students? Roach mountains क्या हो सकता है? You see, you can see it in the picture or in the description given. Roach mountain are also called as sheep backs. Now what are sheep backs, students? It is basically the formation of rock which is created by the passing of glacier. कि जब glaciers pass होते तो जो rock का formation होता है उसको बोलते हैं sheep backs और roach mountains. Okay, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, students? सेकेंड एजेंट जो है ग्लेशियर.
and in that we saw the formation of transport and deposition. Okay, transport and deposition of ग्लेशियर में कौन कौन सी चीज़ें फॉर्म होती है? सर्क्यूज, हॉर्न्स, यू शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैलीज एंड रोच माउंटेन्स. ओके, now let us see the transportation and deposition of it. The glaciers carry sediments with themselves. These sediments are called moraines. Okay, कि जो sediments, जो सारी चीज़ें ग्लेशियर अपने साथ कैरी करती है उसको क्या बोलते हैं? moraines. Depending on the location of the deposit, moraines can be divided into 4 टाइप्स. हम लोग ने पहले देखा मोरेन्स क्या होता है, जो स्टीप वे में, जो कर्व्ड शेप में, क्या बोलते हैं, घाटी वे में, जो घाटी रोड्स होते हैं वो शेप में जब रिवर फ्लो होता है तो उसको मोरेन्स बोलते हैं. सो दिस मोरेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप. ओके, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप. नाउ व्हाट आर दिस 4 टाइप स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं. Okay, so first one is ground moraine, second one is lateral moraine, third one is medial moraine, and fourth one is terminal moraine. You can see it in the picture, student. There is the diagram given there, 4.2 diagram. Observe figure 4.2. The depositional work of glacier produces landforms like drumlins, eskers, etc. ओके, तो ये 4 मोरेन देखे, एंड उसके अलावा कौन कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ ग्लेशियर. तो देर इज़ फर्स्ट वन विच इज़ ड्रमलिन. नाउ इफ़ यू कैन सी द पिक्चर, इफ़ दे हैव गिवन, यस, पेज नंबर 33 पे दिया है. सी ड्रमलिन. ड्रमलिन क्या है? इट इज़ what it is students, जो आइस ओवरलोडेड है ना स्टीम्ड हील्स से. सी मतलब बेसिकली क्या होता है, व्हेन आइस इज ओवरलोडेड विद सेडिमेंट्स. ओके, हील्स पे जब सेडिमेंट्स या आइस ओवरलोड होते हैं तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रमलिन्स. ओके, इट इज़ एलोंगेटेड पार्ट ऑफ हील्स, जो एलोंगेटेड पार्ट्स है हील्स के, वेयर आइस इज ओवरलोडेड विद सेडिमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड ड्रमलिन्स. एंड सेकेंड इज एस्कर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एस्कर्स स्टूडेंट्स? सी द पिक्चर इज गिवन. इट इज़ लाइक अ सैंडी एरिया. सैंड एरिया जो होता है ये बेसिकली कब फॉर्म होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द glacier is melted. Okay, now coming to the 4 types students, जो मोरेन के 4 types है डायग्राम में, if you all can see. The first one is grounded moraine. Okay, grounded moraine आपको दिख रहा है सब लोगों को. Where is it? ग्राउंड मोरेन किधर है? देखो, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द, मतलब क्या बेसिकली, इट इज़ फॉर्म्ड एट द सरफेस या तो बेस ऑफ द ग्लेशियर, कि जो इसका बेस होता है ना ग्लेशियर का, उसके ऊपर क्या फॉर्म होता है? ग्राउंडेड मोरेन. नाउ द सेकेंड वन इज़ लैटरल मोरेन. लैटरल मोरेन सबको दिख रहा है. लैटरल मोरेन कब फॉर्म होता है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द साइड्स ऑफ द ग्लेशियर, के जो ग्लेशियर का साइड्स है वहाँ पे lateral moraine form होता है. The third one is medial moraine. You can see the medial moraine in the middle. So it is formed at the junction between 2 glaciers, के जो ब्लू में 2 ग्लेशियर्स है उसके बीच में जो जंक्शन है उसके ऊपर जो फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं मीडियल मोरेन. एंड द लास्ट वन इज़ टर्मिनल मोरेन. टर्मिनल मोरेन मतलब क्या स्टूडेंट? इट इज़ फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द मोरेन. अंडरस्टूड. तो हम लोग ने सेकेंड एजेंट पढ़ा. कौन सा था सेकेंड एजेंट? ग्लेशियर्स. उसके थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू जो एरोजन में लैंड फॉर्म्स होते थे वो कौन कौन से थे स्टूडेंट्स? विच वर द लैंड फॉर्म्स? जॉर्ज, वी शेप्ड वैली एंड वाटरफॉल. बराबर. सॉरी, दैट वाज ऑफ रिवर. रिवर का हो गया. सॉरी. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लेशियर्स का. तो ग्लेशियर्स के उसमें हम लोग ने कौन कौन से देखे? एरोजन में फॉर्म होता है सर्क्यू, एरिड्स, हॉर्न्स, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैलीज एंड रिच माउंटेन्स. नाउ व्हाट वाज सर्क्यू स्टूडेंट? सर्क्यूज वाज अ सेमी सर्कुलर शेप वैली.
ओके, विच इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ इरोजन. ओके, फिर एरिड्स क्या था? इट इज़ अ थिन क्रेस्ट ऑफ रॉक लेफ्ट आफ्टर टू एडजॉइनिंग ग्लेयर. हम लोग ने देखा जो दो ग्लेशियर के बीच में थिन क्रेस्ट ऑफ रॉक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिड्स. फिर हॉर्न्स क्या था? जो व्हेन ग्लेशियर इरोड्स 3 और 4 एरिड्स. ओके, तो जब ग्लेशियर 3 और 4 एरिड्स बनाता है, एरिड्स हम लोग ने ऊपर देखा जो थिन लेयर ऑफ रॉक फॉर्म होता है, तो जब 3 और 4 लेयर्स ऑफ एरिड्स को ग्लेशियर इरोड करता है उसको बोलते हैं हॉर्न. फिर यू शेप्ड वैली देखा. यू शेप्ड वैली इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम पिक्चर. नाउ कमिंग टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ उसमें ग्लेशियर्स में हम लोग ने कौन कौन से पार्ट देखे? मोरेन एंड देन अदर लैंड फॉर्म्स लाइक ड्रमलिन्स एंड एस्कर. मोरेन में हम लोग ने अगेन देयर वर ग्राउंड मोरेन, लैटरल मोरेन, मीडियन मोरेन एंड टर्मिनल मोरेन. ओके, एंड अदर लैंड फॉर्म्स क्या थे? ड्रमलिन्स एंड एस्कर. ड्रमलिन क्या था? इट वॉज बेसिकली एलोंगेटेड हील. ओके, जो एक्सटर्नल बड़ा वाला हील था, जो लेफ्ट पार्ट ऑफ हील था उसको बोलते हैं ड्रमलिन्स. ओके, एंड एस्कर्स क्या था? इट वाज लाइक अ सैंडी सरफेस विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर melting of glaciers. Understood, students? Now coming towards the third agent कौन सा है? पेज नंबर 30 पे आओ, फर्स्ट पैराग्राफ, फिफ्थ लाइन. the agents like running water, glaciers. Now the third agent is wind. so let us see wind के थ्रू लैंडफॉर्म्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं. ओके, coming towards page number 34, student. Now let us see how wind का transportation, erosion and deposition takes place. Work of the wind and the landforms produced. You have learnt earlier that the movement of air is called wind. Okay, that the movement of air which takes place उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Wind. Wind is a gaseous agent of erosion. The erosional, transportational and depositional work of wind is more prominent in deserts and semi-arid region. Okay, कि winds के जो deposition, transportation होते हैं ना, that takes place mostly in most places. जो most places में कहाँ पे takes place? In the desert areas or semi-arid regions. As mechanical weathering occurs on a large scale here, powdered rock and sand spreads over large area. Okay, there is hardly any obstacle in the transportational work of wind. Okay, so wind के through, because mechanical weathering होता है, तो what all takes place? Powder, rock and spread. ओके, सैंड, जो रॉक्स एंड सैंड होते हैं वो विंड के वजह से, बिकॉज विंड आता है तो रॉक्स और सैंड होता है वो सब जगह स्प्रेड हो जाता है. एंड देर इज़ नो ऑब्स्टेकल ना, कोई बीच में आता भी नहीं है, बिकॉज हवा चल रही है तो हवा अपने साथ सैंड्स और रॉक्स लेके जाती है. Sand particles also get transported along with the wind and they are carried over longer distance and get deposited where the speed of the wind reduces. बराबर ना? अभी समझो यहाँ पे ज़ोर से हवा आ रही है तो यहाँ का मिट्टी अपने साथ वो लेके जाएगी हवा, बट अभी समझो यहाँ पे आगे गई, थोड़ा पॉइंट के बाद आगे गई एंड वहाँ पे विंड कम हो गई तो वहाँ पे वो धूल आ जाती है. बराबर, वो धूल वहीं पे जम जाती है. बराबर, बिकॉज क्यों जम जाती है? बिकॉज अभी विंड का स्पीड स्लो हो गया तो वो अपने साथ सैंड कैरी नहीं कर सकता, तो वो वहाँ पे सैंड गिर जाती है. इन दिस वे द विंड डज द वर्क ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. ओके, पहले हम लोग ने देखा रिवर, तो रिवर अपने साथ फ्लो होता है तो फ्लो के साथ वो अपने साथ ले जाती है. ग्लेशियर्स में भी देखा, ग्लेशियर्स का अपने साथ वो अपने साथ लेके जाता है ग्लेशियर. अब विंड, तो विंड अपने साथ कैसे लेके जाता है? हवा के वजह से, जो हवा वो क्रिएट करता है ना, उसके थ्रू उसका इरोजन टेक्स प्लेस. Now erosional work of wind. Wind carries small sand particles, pebbles, etc. along with it. These particles causes erosion along rocks coming in the way due to friction.
This leads to the formation of mushroom rocks, deflation hollows, yardings, etc. ये क्या होता है जब विंड अपने साथ वो पेबल्स और स्मॉल पार्टिकल्स लेके जाती है, सो देयर इज बीच बीच में क्या होता है, कॉज इरोशन अलॉन्ग रॉक्स कमिंग इन द वे ड्यू टू फ्रिक्शन. तो जो रॉक्स बड़े बड़े रॉक्स बीच में आते हैं तो उससे वो टकराती है, एंड व्हेन दे गेट हिट फ्रिक्शन टेक्स प्लेस, बराबर फ्रिक्शन फॉर्म होता है, एंड इसके वजह से देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक्स. यू कैन सी मशरूम रॉक्स. फिर क्या है, डिफ्लेशन हॉलोज एंड यार्डिंग्स. ओके, मतलब बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हवा अपने साथ फ्लो होती है तो पेबल्स एंड स्मॉल पार्टिकल सैंड्स वो सब लेके जाती है, बट अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आया जैसे बड़ा रॉक या वैसा कुछ, तो उसके साथ जब वो हिट करती है तो देयर आर फॉर्मेशंस ऑफ फ्रिक्शन टेक्स प्लेस, एंड फिर फ्रिक्शन के वजह से ऐसे सारे रॉक्स फॉर्म होते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय hollows, deflation hollows and yardings? Okay, you can see page number 4.3 students. देखो वहाँ पे क्या दिया है 4.3 पे, there is a picture given. उसमें क्या हो रहा है देखो, यार्डिंग्स क्या है, यार्डिंग्स में क्या हो गया है, वो नीचे सेटल हो गया है ना. वो नीचे सेटल क्यों हो गया है स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यार्डिंग स्टूडेंट्स? यार्डिंग में बेसिकली कैसे होता है, जो हार्ड पार्टिकल्स है, ओके, हार्ड एंड सॉफ्ट पार्टिकल्स, तो जो ऊपर के सॉफ्ट पार्टिकल्स है ना वो विंड अपने साथ लेके जाती है, एंड फिर जो ऊपर के सॉफ्ट पार्टिकल्स है, सी यू कैन सी इट इन द पिक्चर, दैट इज कैरिड आउट बाय विंड, एंड द हार्ड पार्टिकल, जो नीचे हार्ड पार्टिकल है वो रह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं यार्डिंग्स. ओके, तो विंड के इरोजन के वजह से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं? मशरूम रॉक्स, डिफ्लेशन हॉलोज एंड यार्डिंग्स. ओके, नाउ लेट अस सी द डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ विंड के. डिपोजिशनल एंड डिपोजिशनल एंड ट्रांसपोर्टेशन वर्क क्या है वो देखते हैं. सैंड पार्टिकल्स दैट ब्लो विद द विंड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. बराबर ना, अलग टाइप की मिट्टी हो सकती है, कोई छोटी सी है, कोई बड़ी सी है. Those particles which are very fine are carried over longer distance. ओके, जो छोटे छोटे हैं, जिनका वज़न कम है, तो विंड अपने साथ वो एकदम दूर तक लेके जा सकते. बराबर पार्टिकल्स who are very fine मतलब एकदम small, while the larger ones get transported to shorter distance. but जो बड़े होते हैं उनको ज़्यादा दूर तक विंड कैरी नहीं कर पाती, तो वो छोटे डिस्टेंस तक ही विंड कैरी कर सकती है. These sand particles get deposited in deserts and semi-arid climates. ओके, तो जो छोटे छोटे हैं उसको दूर तक विंड लेके जाती है, जो बड़े बड़े हैं वो वहीं पे नीचे थोड़े टाइम के बाद गिर जाते. तो जो सारे सैंड पार्टिकल्स गिर जाते हैं, दूर जाके गिरते हैं या नज़दीक जाके गिरते, पर जो भी नीचे गिरते हैं उनके फॉर्मेशंस होते हैं. तो कौन कौन से उसमें वो फॉर्म होते हैं, लेट अस सी. And as a result, specific landforms are formed. Such sand dunes, barchans, sieves, ripple marks, loose plains, etc. are formed by wind deposition. Now, if you see sand dunes, जिसका फोटो वहाँ पे दिया गया है, so these are basically the sand जो डिपॉजिट हो जाती है जब विंड अपने साथ फ्लो होती है. तो जो सारी मिट्टी वो बीच बीच में गिरा देती है या निकाल देती है, उसके थ्रू जो सैंड ड्यून्स फॉर्म्स होते हैं, जो सैंड का फॉर्मेशन फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स. नाउ व्हाट इज़ रिपल मार्क्स स्टूडेंट्स? सी रिपल मार्क्स भी आप लोग देख सकते हो. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपल मार्क्स स्टूडेंट्स? एनी आइडिया? सी द पिक्चर केयरफुली स्टूडेंट्स. रिपल मार्क का तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ बेसिकली द फॉर्म, मतलब क्या होता है, जो
जाड़ी लेयर बोलते हैं ना, द थिक लेयर ऑफ सैंड विच इज़ बीन फॉर्म्ड, उसको बोलते हैं रिपल मार्क्स। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स जो पहले ही विंड अपने साथ छोड़ देता है, तो जो बड़े पार्टिकल्स के थ्रू जो लैंड फॉर्म होता है ना, उसको बोलते हैं रिपल मार्क्स। सैंड ड्यून्स इज बेसिकली जो छोटे छोटे पार्टिकल्स विंड्स लास्ट तक अपने साथ लेके जाती है, बट एक पॉइंट पे वो छोड़ देती है वो सारे सैंड पार्टिकल्स। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से फॉर्म होते वो है सैंड ड्यून्स, एंड जो बड़े बड़े सैंड के पार्टिकल से फॉर्म होता है उसको बोलते हैं रिपल मार्क। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लूज प्लेन स्टूडेंट्स? लॉइस प्लेस मतलब उसमें क्या, बेसिकली उसमें दोनों सैंड्स आते हैं, थिक वाले भी आते हैं एंड थिन वाले भी आते हैं। Understood? You can see the pictures to get a more clear idea that how it works. Okay, so this was the third agent कौन सा था students? Wind. Now coming to the fourth agent कौन सा है, पेज नंबर पे जाके देखो। The fourth agent is sea waves. Now let us see कि sea waves का erosion और transportation and deposition कैसे होता है। Okay, let us come to page number 36. In coastal areas, sea waves carry out erosion, depositional and transportation of sea water, and as a result, waves come to the कोस्ट। बराबर कि सी वेव्स के वजह से वेव्स कोस्ट पे आती है, जो लैंड एरियाज है वहाँ पे यू कैन सी वेव्स। Because of the hitting the rocks at the coast, erosion of the rocks occurs. In coastal areas having wide beaches, waves carry out depositional work। के जो waves है उनकी एक speed होती है, तो वो जब rock को hit करती है तो rock का पूरा shape भी बदल देती है, right? And that is how erosion and transportation takes place. Now let us see how erosion of sea waves takes place. When the waves break at the coast, they bring with them water, transported stones, pebbles, sand particles, etc. बराबर ना, हम लोग बीचेस पे भी जाते हैं, तो इफ़ यू सी प्रॉपरली जब पानी का फ्लो आता है तो वो अपने साथ मिट्टी एंड रॉक्स छोड़ के जाती है, बराबर वही बताया है यहाँ पे। दिस लीड्स टू द इरोजन ऑफ कोर्स एंड दैट इज़ हाउ इरोजन टेक्स प्लेस, बराबर कि वो अपने साथ रॉक्स लेके आई या सैंड लेके आई। Because of the chemical and hydraulic action of the sea wave too, erosion occurs. Okay, कि उसका जो chemical and hydraulic action है ना, उसके वजह से भी erosion takes place होता है। Now let us see what all landforms are being created because of erosion of sea waves. Okay, so erosion of sea waves create landforms like wave cut, कि wave cut होता है, फिर wave cut platforms, sea cave, sea arcs and sea cliff etc. are formed because of erosional works of wave. So if you see the picture, see wave cut का picture दिया है, sea caves का दिया है, sea arcs का दिया है। मतलब क्या, देखो if you see sea caves तो उसमें क्या हो गया है स्टूडेंट्स कि वो पानी, वो रॉक्स, अभी समझो वहाँ पे वो माउंटेन रहेगा, वो जो नीचे का पार्ट कट हो गया वहाँ पे माउंटेन रहेगा, बट ज़ोर से सी का प्रेशर आता है, वो सी हिट करता है तो इट चेंजेस द शेप एंड दैट इज़ हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केव्स, कि वो गुफा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ यू कैन सी क्लिफ। ओके, तो यहाँ पे भी वही होता है कि क्लिफ में फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज इट हिट्स ना, द सी हिट्स द रॉक्स एंड दैट इज़ हाउ द कन्वर्जन टेक्स प्लेस। नाउ सी आर्क्स आप लोग ने देखा है, दिस इज़ इफ़ यू सी प्रॉपरली दिस ऑल ऑफ दीज आर बीन फॉर्म्ड इन बाली। अगर आप बाली गए हो तो सी आर्क्स के फॉर्मेशंस आप लोगों ने देखे होंगे। एंड देन वेव कट प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है, बेसिकली वो प्लेस जहाँ पे वेव्स आते हैं बट दे हिट द रॉक एंड दे गो बैक। तो ऑल ऑफ दीज आर फॉर्मेशन ऑफ erosion of waves. Okay students, now let us come to the depositional work of sea waves. The eroded material accumulates at the seabed। बराबर ना, एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं रॉक्स, सॉल्ट, अरे रॉक्स, पेबल्स जो जो आते हैं वो एक पॉइंट पे एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं।
Because of tides they keep on moving towards the coast and away from the coast, but वैसे ही वापस सी का वेव्स आ गया तो वो अपने साथ कैरी हो जाता है, और if sometimes it is just stayed back. They become fine particles of attribution and heating each other. Deposition of such materials occurs at the places where the effect of wave is less. कि जहाँ पे waves less heat होते हैं ना, तो वहाँ पे small छोटे छोटे particles developed हो जाते हैं, and उसके वजह से अलग अलग landforms create होते हैं. तो कौन कौन से landforms create होते हैं because of sea waves students? Beaches एक तो तैयार होता है, बराबर. बीच हम लोग देखते हैं sandbars and lagoons. Now what do you mean by sandbars and lagoon students? अगर आप sandbar का picture देख रहे हो, you see it in the pictures also, you will understand what is sandbar. देखो वहाँ पे picture दिया गया है right hand side पे. So it is basically an area of sand, okay, which is जहाँ पे कौन कौन से सैंड अवेलेबल है? ग्रेवल और फाइन सेडिमेंट्स, ओके, दैट सिट्स अबव द वाटर के, जो वाटर के थोड़ा सा ही नज़दीक रहते हैं एंड जो ऊपर रहते हैं, एंड जो अच्छे अच्छे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सैंड बार्स. नाउ द सेकेंड फॉर्मेशन ओवर हियर इज लगून्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लगून स्टूडेंट्स? लगून्स का फोटो दिया है वो लोग ने. Yeah, the photo is given on the left corner. What do you understand by lagoons? See the picture carefully, you will understand. What is it? It is a basically lake of salt water. एक छोटा सा lake type होता है जिसमें salt water होता है, which is separated from the sea. जो sea से separated है, किसके through? Rocks या sand के through जो sea से separated है, but it is collection of lake of sea water. Okay, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं students? Lagoons. You can see the diagrams to understand what it means. Okay, so the agent हम लोग ने अभी कौन सा देखा? sea water, sea waves. sea waves में sea students पूरा चैप्टर का फ्लो ऐसा ही है. ये जो सारे एजेंट्स हैं हम लोग उसका एरोजन पार्ट देखेंगे एंड हम लोग उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन पार्ट देखेंगे. एरोजन में कोई कोई लैंडफॉर्म्स टेक्स प्लेस होते हैं, डिपोजिशन में कोई कोई लैंडफॉर्म्स टेक्स प्लेस होते हैं. तो हम लोग को उतना याद रखना है, बराबर. तो अभी हम लोग ने देखा सी वेव्स में एरोजन के थ्रू कौन कौन से लैंडफॉर्म्स have been created. So wave cut platforms, sea caves, sea arcs, sea cliffs were created because of erosion of sea waves. And what was created because of depositional work of sea waves? तो deposition के through कौन कौन से form हुए थे? Beaches या sand bars या lagoons. Okay, now coming to the last agent. What is the last agent student? Groundwater. Okay, groundwater एक last agent है जिसके through erosion takes place. Now let us see groundwater का work, how does it takes place. Okay, coming to page number 38 students. Okay, coming to page number 38. Work of groundwater and landforms which are being produced. The rainwater seeps below the earth's surface through porous rocks or cracks in the rocks. बराबर. क्या सपोज रॉक्स का पूरा माउंटेन बना है तो नीचे तक पानी कब पहुँचेगा? रेन वाटर. इफ़ देयर आर पोरस रॉक्स, पोरस मतलब क्या? जो होल वाले रॉक्स है उनके थ्रू पानी नीचे आ सकता है, या बिकॉज ऑफ cracks in the rocks. बराबर. if you see the picture on 38 राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, समझो वो रॉक्स है जो ब्रिक्स है. अभी हमको पानी को नीचे लाना है तो वो जो छोटा सा गैप है उसके थ्रू पानी नीचे आ सकता है, राइट. This water accumulates in the non-porous layer of the rock and this accumulated water is called groundwater. बराबर. कि जो non-porous layer है जहाँ पे कोई holes नहीं है वहाँ पे ये water rainfall store हो जाता है and such waters are being called as groundwater. The soluble minerals in the water gets dissolved and flow with the groundwater. This is the erosional work of groundwater के जो उनके साथ जो minerals होते हैं ना waters के, वो भी वहाँ पे dissolve हो जाता है and that is how ये
ग्राउंड वाटर अपने साथ पानी लेके आता है या पार्टिकल्स लेके आता है, बराबर. एंड दैट इज़ हाउ इरोजन टेक्स प्लेस. व्हेन द ग्राउंड वाटर इवॉपरेट्स और द वॉल्यूम ऑफ सल्यूबल मिनरल इज मोर देन द सल्यूबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, द डिपोजिशन ऑफ डिजॉल्व मटीरियल स्टार्ट्स. मतलब क्या होता है, अभी समझो ग्राउंड वाटर इवॉपरेट हो रहा है, तो उसके साथ जो सल्यूबल मिनरल है वो क्या हो जाएगा, वो उधर ही नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, बराबर. जो मटेरियल्स थे उसके साथ वो डिपॉजिट हो जाएगा और ग्राउंड वाटर इवोपरेट हो जाएगा, बराबर. लैंड फॉर्म्स लाइक सिंक होल, लाइमस्टोन केव्स, स्टैलेसाइट्स एंड स्टैलेगमाइट्स आर फॉर्म. ओके, तो इसके थ्रू कौन कौन से लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं. सिंक होल अगर आप लोग देख रहे हो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंक होल पिक्चर के थ्रू. इफ़ यू सी द पिक्चर, सिंक होल मतलब क्या, इट इज़ बेसिकली अ डिप्रेशन इन द ग्राउंड. डिप्रेशन मतलब क्या, एक छोटा सा खड्डा टाइप्स इन द ग्राउंड विच हैज़ नो एक्सटर्नल सरफेस, के उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल सरफेस नहीं होता है. एंड वहाँ पे फिर वाटर, व्हेन इट रेन्स तो ऑल ऑफ द वाटर stays inside that sink hole, barabar. That is called as sink hole. Now coming to limestone caves. limestone caves मतलब क्या होते हैं, वही जो पानी के थ्रू caves form हो रहे हैं. But why it is called as limestone caves, student? They have not given you the picture of limestone cave ना. limestone cave क्या होता है student? It is a natural cavity that is formed under the earth's surface. ओके, एक नेचुरल कैविटी, एक छोटा सा गैप जैसा फॉर्म हो जाता है अंडर द अर्थ सरफेस, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज limestone caves, sorry. And then talking about stalactites and stalagmites, if you see the picture carefully, you will understand what is stalactites. So what do you understand by stalactites, students, pictures के through? उसमें अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो you will understand what is stalactites. It is basically a long thin piece of rock hanging down from the roof of cave. वो जो लटक रहा है ना, पानी जैसा जो नीचे गिर रहा हुआ दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं stalactites. मतलब क्या, it is a thin piece of rock का thin piece है which is hanging down. okay, उसको बोलते हैं stalactites. and what do you mean by stalagmites? what is the difference between, अभी stalagmite क्या है student? stalagmite is an upward growing mound of mineral. okay, कि जो ऊपर की तरफ जा रहा हुआ दिख रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं stalagmites. don't get confused in stalactites and stalagmites. stalactites क्या होता है? it is basically the formation of rock, जो rock नीचे के तरफ आ रहा है from the ceiling of cave. okay, and what is stalagmites? it is upward growing mound of mineral, जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं stalagmites. अब यहाँ पे दिया नहीं गया है कि रॉक्स के, अरे इसके वजह से जो कौन सा पार्ट एजेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्राउंड वाटर, कि ग्राउंड वाटर के इरोजन से कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं एंड डिपोजिशन से कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं वो नहीं बताया, ये लोग ने डायरेक्ट सब बता दिए हैं. सो सी, जो सिंक होल्स है एंड लाइमस्टोन केव है वो इरोजन के वजह से फॉर्म होते हैं, एंड द वन विच इज स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेगमाइट्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द deposition of groundwater. Thus, the groundwater carries out erosion, transportation, and depositional work. समझा स्टूडेंट? हाउ डज, हम लोग ने क्या पढ़ा बेसिकली? वी हैव लर्नड डिफरेंट एजेंट्स. कौन कौन से एजेंट्स थे? रिवर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव्स एंड ग्राउंड वाटर. फिर हम लोग ने रिवर का इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन देखा. तो रिवर के इरोजन के थ्रू कौन कौन से लैंड फॉर्म हो रहे थे? जॉर्ज, वी शेप्ड एंड वाटरफॉल. एंड रिवर के ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन के थ्रू कौन कौन से लैंड फॉर्म हो रहे थे? एल्यूवियल फैंस, फ्लड लीव्स, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज, बराबर. फिर सेकेंड एजेंट था ग्लेशियर. तो ग्लेशियर के थ्रू, ग्लेशियर के एरोशनल से कौन से फॉर्म हो रहे थे? तो वी सॉ जॉर्ज, वी शेप्ड, वो सब सर्क, एरिट, वो सब
इरोजन के थ्रू हो रहे थे. फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कौन कौन सा हो रहा था? ड्रमलिन्स, एस्कर्स, मोरेन्स, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो यही सारी आपको चीज़ें याद रखनी है थ्रू आउट द चैप्टर. द एजेंट्स and the landforms which are being formed through transportational and depositional and erosional means. Okay, so this is how your chapter come towards an end. Now students, you have to do exercise as an homework. Okay, तो पूरा exercise जो रहेगा that would be your homework, and then you have to submit it to your respective homework teacher. Fine. So yeah guys, that was it for today's session. I hope you have understood different agents, how erosion and deposition and transportation takes place of that agents. So see you all in the next session. Till then, bye bye and take care. Bye.